નવું વર્ષ નવી આશા તમામ દર્શકોને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક હું આપની સાથે જુહી સૌથી પહેલા વાત કેદારનાથ પહોંચેલા પ્રધાનમંત્રીની प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम पहुंचा आज बेसता वर्षना दिवसे प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथनी मुलाकाते छे ज्यां पीएम मोदी महादेवना आशीर्वाद लेशे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाममां लगभग 4 कलाक रोकाशे जेमना आगमन पहला तंत्रए तड़ामार तैयारीओ करी लीधी छे। साथे प्रधानमंत्री मोदी श्री आदि शंकराचार्य समाधिनुं उद्घाटन करशे ने तेमनी मूर्तिनुं अनावरण करशे। 2013 पूर बाद तेનું પુનર્નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે અને આ સાથે 400 કરોડથી વધુની યોજનાની જાહેરાત પ્રધાનમંત્રી મોદી કરશે। જણાવી દઈએ કે 5 નવેમ્બર પ્રધાનમંત્રી મોદી કેદારનાથ જશે અને 6 નવેમ્બરથી કેદારનાથ ધામના કપાટ બંધ થઈ જશે। દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગમાંનું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ કેદારનાથ મંદિર અને આ સાથે પ્રધાનમંત્રી આજે ગુજરાતીઓના જ્યારે નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ રહી છે અને આજના દિવસે તેઓ દેવ દર્શન અને એમાં પણ કેદારનાથના દર્શન કરી નવા વર્ષની શરૂઆત કરશે। આ સીધા દ્રશ્યો કે જ્યાં પ્રધાનમંત્રી કેદારનાથ પહોંચી ચૂક્યા છે અને અહીંયા તેઓ 4 કલાક જેટલો સમય વિતાવશે। બાબા કેદારનાથના દર્શન કરશે, રુદ્રાભિષેક કરશે અને આ સાથે અહીંયાથી જ દેશની જનતાને આજે સંબોધિત કરશે। જો કે સવારે જ તેમણે ટ્વીટ કરી અને ગુજરાતીઓને ગુજરાતી ભાષામાં શુભકામના પાઠવી છે। દેશના પ્રધાનમંત્રી જ્યારે ગુજરાતી હોય અને આજે ગુજરાતીઓનું નવું વર્ષ જેને લઈ તેમણે શુભકામનાઓ પાઠવી। કેદારનાથ પહોંચ્યા છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી। ગઈકાલથી જ સંપૂર્ણ તૈયારીઓ છે તે કરી લેવામાં આવી છે। આવતીકાલથી કેદારનાથ ધામના કપાટ બંધ થઈ જશે। 6 મહિના માટે તેમની પૂજા પંચકેદારમાં કરવામાં આવશે અને 6 મહિના બાદ ફરી એકવાર ભક્તો માટે આ કપાટ ખુલી જશે। આજનો આ અંતિમ દિવસ અને આજના દિવસે પ્રધાનમંત્રી બાબા કેદારનાથના દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા છે। ગંગોત્રી યમનોત્રી પછી કેદારનાથ ધામના કપાટ બંધ થતા હોય છે અને દેવ દિવાળી સુધી બદ્રીનાથના કપાટ પણ બંધ થઈ જશે ને 6 મહિના બાદ ફરી એકવાર ઉત્તરાખંડના 4 ધામ ભક્તો માટે ખુલ્લા થઈ જશે। તમામ જે તૈયારીઓ છે કેદારનાથ મંદિરની બહાર પરિસરના દ્રશ્યો એક તરફ આપને દર્શાવી રહ્યા છે તો બીજી તરફ હેલિકોપ્ટરના દ્રશ્યો કે જ્યાં દેહરાદૂનથી નીકળેલું હેલિકોપ્ટર કે જે કેદારનાથ હેલિપેડ સુધી થોડી જ વારમાં પહોંચી જશે। વહેલી સવારે દિલ્હીથી દેહરાદૂન એરપોર્ટ અને જોલીગ્રાન્ટ એરપોર્ટથી તેઓ હેલિપેડ સુધી પહોંચ્યા હતા પ્રધાનમંત્રી અને ત્યારબાદ હાલ તેઓ દેહરાદૂનથી કેદારનાથ પહોંચી રહ્યા છે અને થોડી જ વારમાં મંદિર પરિસરમાં આવેલા હેલિપેડ પર તેઓ ઉતરાણ કરશે અને ત્યારબાદ બાબા કેદારનાથના દર્શન કરશે પ્રધાનમંત્રી મોદી। કોરોના કાળને લઈ સપ્ટેમ્બરના અંતમાં આ તમામ કપાટ ભક્તો માટે તેમના પ્રવેશ માટે ખોલવામાં આવ્યા। પૂજા તો થતી હતી પરંતુ દર્શન કરવા માટે નહોતા જઈ શકતા અને વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી। અનેક ભક્તોએ દર્શન કર્યા। ખૂબ ઓછો સમય હતો તેમ છતાં અનેક શ્રદ્ધાળુઓ કે જેમની મનોકામના પૂર્ણ થઈ અને આજે અંતિમ દિવસ છે। આવતીકાલથી કપાટ બંધ થઈ જશે। થોડી જ વારમાં પ્રધાનમંત્રી કેદારનાથ ધામમાં આવેલા હેલિપેડ પર ઉતરાણ કરશે। તમામે તમામ દ્રશ્યો ડ્રોન મારફતથી અને सीधा दृश्यों पर अमे आपने बतावीशुं कि ज्यां प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करवाना छे त्यांथी देशनी जनताने संबोधन करवाना छे ने तमाम जे तैयारीओ छे ते करी देवामां आवी छे। जो श्रद्धालु यहाँ पर इस वक्त हैं जो दर्शन के लिए आए हैं
उनको न तो यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है और ना ही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप अपने होटल्स या जहां भी आप रुके उसको खाली कर दीजिए। इट्स जस्ट दैट सिक्योरिटी है तो कुछ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन जो यात्री इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को सीधा बैठ के सुन सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप अगर यहाँ रुके हैं तो उन होटल्स और उन जगहों से निकल के अगर आप प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं तो एक इंक्लोजर बनाया गया है जहाँ पर लोगों के, श्रद्धालुओं के बैठने का इंतजाम है। प्रधानमंत्री मंदिर के ठीक सामने होंगे और वहां से जब वो देश को संबोधित कर रहे होंगे, देश से बात कर रहे होंगे, उस वक्त सामने के इंक्लोजर्स में यहाँ मौजूद लोग उनको सीधा सुन पाएंगे। ये एक विशेष इंतजाम है, क्योंकि होता यह है कि वीवीआईपी मूवमेंट में सबसे पहले जो आम लोग होते हैं उनकी मूवमेंट्स को लेकर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, उनकी मूवमेंट्स को लेकर, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। बट सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उसको लेकर व्यवस्था की गई है, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि हर आदमी यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन में है। इस वक्त मैंने निधि तापमान अभी चेक कराया है, -3 से -4 डिग्री के तापमान में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। ऐसी स्थिति में लोग अपने घरों से, कई परिवार अपने बच्चों को लेके यहाँ आए हैं और वो इसलिए रात को यहाँ रुक गए दीपावली के बाद क्योंकि वो प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और ये एक खास व्यवस्था की गई है, हालांकि सुरक्षा के जो इंक्लोजर्स हैं उसको इस हिसाब से बनाया गया है ताकि अलग अलग इंक्लोजर्स में बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं की जाएं। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं, सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं और सुरक्षा की व्यवस्थाओं में 3 चक्रीय घेरा है और 3 सिक्योरिटी लेयर में पूरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा रहेगी। और प्रधानमंत्री दर्शन के बाद, अंदर महादेव के दर्शन करने के बाद वो मंदिर से बाहर आएंगे और वहीं बाहर में ही एक स्टेज लगा है जहां से वो लोकार्पण करेंगे तमाम उन योजनाओं का जिन पर लगातार कई सालों से काम चल रहा है और वो कार्य अब पूरे हो गए। यानी कि केदारनाथ धाम दोबारा से 2013 की त्रासदी के बाद जिस तरीके से खड़ा किया गया, वो पहले से भी ज़्यादा भव्यतम रूप में, पहले से भी ज़्यादा सुंदर और पहले से भी ज़्यादा दिव्य रूप में इस वक्त खड़ा हो गया है। उसको उस तरीके से तैयार कर दिया गया है और उन तमाम योजनाओं का लोकार्पण करके वो देश को समर्पित करेंगे। और सामने के मंदिर के सामने जो पोडियम बना है, उसी पोडियम से वो उन योजनाओं के लोकार्पण के बाद वहीं उस मंच से वो देश को संबोधित करेंगे। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इस बात का है और जैसे मैंने कहा कि कल रात को बहुत सारे लोग दीपावली मनाने के बाद, कल जब यहाँ वो पहुँचे थे सुबह में, तो इस प्रोग्राम के तहत आए थे कि रात को यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि कल सुबह प्रधानमंत्री को सुनने का उन्हें मौका मिलेगा। तो वो सामने होंगे और उनकी रुचि है इस बात को कि प्रधानमंत्री केदारनाथ के इस पवित्र धाम से देश को क्या कहने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इस बात में भी है कि क्या जिस रास्ते से वो जाएंगे, क्या प्रधानमंत्री से मिलने का एक मौका भी उन्हें मिलेगा। क्योंकि निधि, आप याद कीजिए, जब भी प्रधानमंत्री इस तरह के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो एक सरप्राइज एलिमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर होता है, चाहे वो गणतंत्र दिवस समारोह हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस समारोह हो, चाहे इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जब वो जाते हैं तो कई बार उनकी गाड़ी जब अचानक से उनका कैवलकेड रुकता है और जब वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो उनकी आइटेनरी में कहीं नहीं होता। वो ये ज़रूर लोगों के लिए सरप्राइज होता है कि प्रधानमंत्री उतर के और बच्चों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, इसकी उम्मीद में भी बहुत सारे लोग हैं कि क्या मंच से देश को संबोधित करने के बाद जब मंच से वो उतरेंगे तो क्या एक मौका आएगा कि वो उन इनक्लोजर्स की तरफ बढ़ेंगे जहां लोग बैठे हुए हैं, क्या उनसे वो मुलाकात करेंगे, क्या उनसे वो बातचीत करेंगे। ये एक सरप्राइज एलिमेंट है और इस सरप्राइज एलिमेंट पे कल रात से बहुत सारी चर्चा हो रही है कि हो सकता है वो मंच से संबोधित करने के बाद तुरंत लोगों के बीच चले जाएं और लोगों से पूछना शुरू कर दें कि भाई केदारनाथ धाम आप पहले भी आते थे, अब आते हैं, क्या अंतर, क्या फर्क महसूस होता है आपको। तो ये तमाम चीज़ें अब देखना है प्रधानमंत्री के पहुँचने के बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ होती हैं। और एक एक तस्वीर बहुत ही मैं कहूँगा कि मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, हालांकि जो मंदिर है केदारनाथ मंदिर, वो यहाँ से मुझे लगता है 20 या 25 कदमों की दूरी पे है, लेकिन चूंकि हमारा नेटवर्क, कई सारे जैमर्स और मोबाइल जैमर्स लगे हुए हैं, इस वजह से हमारा नेटवर्क जिस जगह से आ रहा है हम वहीं से इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ की सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और एक बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने, हेलीकॉप्टर से बाहर आने, लोकार्पण करने, मंदिर में दर्शन करने, देश को संबोधित करने और उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करने, इस पूरी आइटिनरी के बीच में एक सरप्राइज एलिमेंट, लोगों से मिलने वाला सरप्राइज एलिमेंट, इसका यहाँ
हर आदमी इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है क्या। તો કેદારનાથ ધામ થોડી જ વારમાં તેની બહાર આવેલા હેલિપેડ પર થોડી જ વારમાં કે પ્રધાનમંત્રી ઉતરાણ કરશે અને આ સીધી તસવીરો અમે આપણે બતાવી રહ્યા છે। ગઈકાલથી લઈ અત્યાર સુધી જે તૈયારીઓ થઈ, અમારા રિપોર્ટર્સ જે ત્યાં પહોંચ્યા છે તે પણ આપના સુધી આ ખબરો પહોંચાડી રહ્યા છે। કેદારનાથનું આ મંદિર 2017થી પ્રધાનમંત્રીએ અહીંયા દર્શનની શરૂઆત કરી હતી અને આ સિલસિલો આજે પણ ચાલુ છે। કપાટ બંધ થાય તે પહેલા તેઓ દર વર્ષે બાબા કેદારનાથની એકવાર મુલાકાત કરી જ લે છે અને પ્રધાનમંત્રી થોડી જ વારમાં અહીંયા ઉતરાણ કરશે। આ સીધી તસવીરો અમે આપણે બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં દેહરાદૂન હેલિપેડથી તેઓ કેદારનાથ જવા માટે રવાના થયા હતા। તો બીજી તરફ મંદિરના પણ લાઈવ દ્રશ્યો સવારના અમે આપણે બતાવી રહ્યા છે અત્યારે કે જ્યાં તમામ તૈયારીઓ છે તે થઈ ચૂકી છે। આજે તેઓ મંદિર બહારથી દેશની જનતાને શું સંબોધિત કરે છે, શું સરપ્રાઈઝ મળે છે, તેના પર સૌ કોઈની નજર। તો આજે ગુજરાતીઓનું નવું વર્ષ અને આ સાથે પ્રધાનમંત્રી પણ કેદારનાથ પહોંચ્યા છે। તેની તમામ અપડેટ Z24 કલાક આપના સુધી પહોંચાડતું રહેશે। રોકાઈશું હાલ એક બ્રેક માટે।